Let's see now. Yes, sir. Call to repentance. My indicting now in this new Calvary is the church, so-called most holy places, great pulpits, Catholicism altar, Catholic altar, called their pulpit. आए अब मजीद देखें। जी हाँ जनाब, तोबा की बुलाहट है और मैं अब फर्दे जुर्म लगा रहा हूँ। ये नई कलवरी कलीसिया है, नाम नहाद, पाकतरीन मकामात, बड़े बड़े पुलपट है, कैथलिक मंबर जिसे वो अपना पुलपट कहते हैं। The Methodists, the Baptists, the Presbyterian, the Lutheran, and the Pentecostals, the most holy places. There he receives, his heart is pierces. A new Calvary. Where is it found at? In the holy places, the church. ये सब पेंटिकोस्टल, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और लूथरन है। इन पाकतरीन मकामात में खुदावंद गहरे जख्म पा रहा है। ये नई कलवरी है। ये सलीब कहाँ पाई जाती है? पाक मकामों में, यानी चर्च में। Where is he crucified at? From the pastors. You hypocrites. You know better than that. I'm not angry, but something inside of me is stirring. God's been thoroughly identified among you. किनकी तरफ से वो मसलूब हो रहा है? पादरियों की तरफ से। तुम रयाकारो, तुम सब अच्छी तरह जानते हो। मैं गुस्से में नहीं हूँ, मगर मेरे अंदर ये जोश उठ रहा है। आपके दरमियान पूरी तरह खुदा जाहिर किया गया है। Where did he get his spears at in his side? Where did he get his pierces? On Calvary. Where does he get it today? In the pulpit. Where did they come from? Jerusalem. Where did they come from? The denomination. उसकी पसली में ये बाले का निशान कहाँ से आया? उसके हाथ पांव कहाँ छेदे गए? सलीब पर। आज ये सब उसके साथ कहाँ किया जा रहा है? मंबर पर। वो कहाँ से आए थे? यरूशलेम से। ये आज कहाँ से आ रहे हैं? तंजीमों से। The ones who claim to love him. That's who did it. That's who does it today. His second Calvary, where he receives his pierces against the Word. That's what pierces him. Who is he? He's the Word. He is the Word. Where's it pierce the hardest from? The pulpit. In the holy places. Just like it was then. वो जो उससे प्यार करने का दावा करते थे, उन्होंने ये किया और वही आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। उसकी दूसरी सलीब, जहां उसको कलाम के खिलाफ जख्म दिए गए हैं, ये जो जख्म उसे मिले हैं, और वो कौन है? वो कलाम है। वो कलाम है। गहरे जख्म उसको कहां से लगे हैं? पाक मकामों के पुलपट से, जैसा कि उसके साथ तब किया गया था। I've got a right to indict this generation. I got a right to do it as a minister of the gospel of Jesus Christ with his signs and proving that he is God. I got a right to bring indictment against this generation. मुझे इस नस्ल पर फर्दे जुर्म लगाने का हक है। यीशु मसीह की अंजील का मुनाद होने और उसके निशानों से साबित करने के बाइस कि वही खुदा है, मुझे हक है कि फर्दे जुर्म लगाऊं। इस नस्ल के खिलाफ फर्दे जुर्म लगाना मेरा हक है। Because his hardest spear points has been right from the pulpits where they've criticized and said, don't go out to hear that stuff. That's of the devil. Right in the place that's supposed to love him. क्योंकि उसे सबसे ज्यादा जख्म पुलपट से लगे हैं। यहाँ पर लोगों ने उस पर नुक्ताचीनी करके कहा, इनकी ऐसी बातें सुनने मत जाओ, वो अबलीस की तरफ से हैं। ऐसा ठीक उस मकाम से कहा गया जहाँ से उसे प्यार मिलना चाहिए था। And the very signs that Jesus said would take place. The Word of God is sharper than a two-edged sword, or a discerner of the thoughts of the intents of the heart. And it's called the devil. Where from? The pulpits. The holy places. और ठीक वही निशान दिखाए गए हैं जिनके बारे में यीशु ने कहा था दिखाए जाएंगे। खुदा का कलाम दो-धारी तलवार से भी तेज है। कलाम दिलों और ख्यालों और इरादों को जांचता है, और इसको अबलीस कहा गया। कहाँ से? पाक मकामों और पुलपट से। Oh God, how can he look down? Just mercy, that's all grace. We can't do nothing else but head for judgment. We're already there. हो खुदा किस तरह नीचे इन पर नजर डाले। बस रहम हो, बस यही सारा फजल है।
हम और कुछ नहीं कर सकते, बस अदालत की तरफ बढ़ रहे हैं। हम तो पहले ही वहां खड़े हैं। Think of it. His hardest pierces comes from the pulpit. That's where his new Calvary's at. They crucify him, the Word, at the pulpit. That's right. How? How they do it? By their forms of godliness. Exactly. इस पर सोचें, उसको गहरे जख्म पुलपट से लगे हैं और यहीं पर उसके लिए नई सलीब खड़ी है। वो उसे यानी कलाम को अपने पुलपट से मसलूब कर रहे हैं। ये सच है। ये कैसे उन्होंने किया है? अपनी झूठी दीनदारी की वजह से। ये बिल्कुल ऐसा ही है। Crowned from the audience by scoffers. He's got a new crown of thorns. Scoffers pierced from the pulpit, crowned by the scoffers. Is he crucified again afresh? ठट्ठा करने वाले लोगों ने उसे कांटों का ताज पहना दिया है। उसे कांटों का एक नया ताज फिर से दिया गया है। ठट्ठाबाजों ने पुलपट से जख्म दिए हैं और मजाक उड़ाने वालों ने उसे ताज पहनाया है। क्या उसे दोबारा सलीब पर चढ़ाया गया है? Striped by man-made creeds. Teachers of denomination against his word. They stripe it. Shame, condemn it. इंसान के बनाए गए अकीदे और तंजीमी आलम उसके कलाम के खिलाफ कोड़े मारते हैं। वो उसे कोड़े मारते हैं, उसे शर्मिंदा करते हैं और उसे रद्द करते हैं। Jesus said, in vain they worship me. In vain. Don't do no good. Who do they worship? They worship that same God. They was worshiping that same God at his first crucifixion. And it was vain worship. यीशु ने कहा, ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं। बेफायदा, इससे कोई भला होने वाला नहीं है। किसकी प्रस्तिश करते हैं? ये उसी खुदा की प्रस्तिश करते हैं। पहली मसलूबियत के वक्त भी वो उसी खुदा की प्रस्तिश कर रहे थे और वो प्रस्तिश बेफायदा थी। It's the same thing today. In vain they build these denominations. In vain they build these seminaries. In vain they have these creeds. Teaching for doctoring the commandments of man and denying the word of God. और आज भी वही बात है। ये बेफायदा तंजीमें बना रहे हैं। ये बेफायदा सेमिनरियां बना रहे हैं। इनके अकीदे बेफायदा है। ये इंसानी हकाम की तालीम दे रहे हैं और खुदा के कलाम का इनकार कर रहे हैं। You're guilty of crucifying the Prince of Life. Teaching man's doctrines for his word. In vain they worship me. Striped, pierced, crowned. ये जिंदगी के शहजादे को मसलूब करने के कसूरवार है और उसके कलाम की बजाय इंसानी हकाम की तालीम देते हैं। ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, उसे कोड़े मारते हैं, ताज पहनाते हैं और जख्म दे रहे हैं। When you see that go down the street and some of you ladies with long hair say, she's old-fashioned, isn't she? Remember, that's scoffers. That's the crown that you're wearing. God said it was your glory. Wear it with pride. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. आप देखते हैं जब वो सड़क से गुजरते हैं और आप में से कुछ बहनें लंबे बालों के साथ होती हैं तो कहते हैं, ये पुराने तर्ज की औरतें हैं। क्या ये नहीं है? याद रखें, ये ठट्ठाबाज लोग हैं। लंबे बाल आपका ताज है जो आप पहने हुए हैं। खुदा कहता है, ये आपकी जीनत है। इन्हें फख्र के साथ रखें। हालेलुया। Wear it with pride. You would wear a crown of thorns for your Lord. Hallelujah. Wear it with pride. Don't be ashamed. He said so. No matter what these Jezebel says today, what these imposters standing in the pulpit, crucifiers of Christ, no matter what they say, you wear it with pride. God said so. You keep it. फख्र के साथ इन्हें रखें, गोया आप खुदावंद के लिए कांटों का ताज पहन रही हैं, इसलिए इन्हें फख्र के साथ रखें। शर्माए मत, खुदा ने ऐसा कहा है। कोई बात नहीं, ये इज़बल आज क्या कहती है? मसीह को मसलूब करने वाले जो पुलपट पर खड़े हैं, ये क्या कहते हैं? इसकी परवाह मत करें। आप फख्र से इन्हें रखें। खुदा ने ऐसा कहा है, आपको यही करना चाहिए। Crown with scoffers again, thorns, pierced from the pulpit with creeds. He got a new Golgotha, where they take him to, these robed choirs.
short-wearing women, bobbed-haired, painted face, singing in the choir like angels with talents. ठट्ठाबाजों ने फिर उसे कांटों का ताज पहना दिया है, उसे अकीदों के साथ पुलपट पर छेद दिया है। आज वो गलगत्ता की नई पहाड़ी पर है। वो उसे कहाँ लेकर जाते हैं? ये चोगे पहनी क्वेर, छोटे कपड़े पहनने वाली औरतें, कटे बाल, रंगे चेहरे, जो कि फरिश्तों की तरह गीत गा रही होती हैं। That's his new Golgotha. Just modern strip teases, protected by a law like it's Sodom and Gomorrah. You see a little female dog go down the street at certain times, there's not a male dog will even go out where she's at. Let a certain thing happen and every one of them will run after her. There's something happened to her, you know why? यही उसका नया गुलगत्ता है। बस आज के नंगेपन को कानूनी तहफ्फुज मिल चुका है, जिस तरह सदूम और अमूरा में था। आप सड़क पर जाते हुए एक कुतिया को देखें, और बाज औकात तो एक कुत्ता भी उसके पीछे नहीं जाएगा, मगर जरा सी बात होने दें, उनमें से हर एक लड़की के पीछे दौड़ा हुआ चला जाएगा, क्योंकि उस लड़की को कुछ हो गया है। ऐसा क्यों है, आपको पता है? Watch these women take off their clothes before you go down the street. Don't tell me it ain't the same thing. It's an identification. Don't condemn the man. But they're protected by Sodom law. That Lord, I say it's, lawful for them to be out there. आए, देखें क्यों ये औरतें अपना लिबास उतार कर सड़कों पर जाती हैं। मुझसे ये मत कहना कि ये एक जैसी बात है। ये तो एक शनाख्त है। मर्द को मत मुजरिम ठहराएं, मगर ये सदूम के कानून से महफूज है। मगर मैं कहता हूँ, इस तरह बाहर जाना गैर कानूनी होना चाहिए। And preachers in the pulpit ought to have petticoats instead of the clergy coat. Standing out there and will permit it and ashamed to speak against it because their denomination will put them out. You crucify to the congregation the word of God which says it's an abomination for a woman to wear a garment that pertains to the man. और पुलपट से मुनादी करने वालों को अब बजाय पादरी के लिबास के लहंगा पहन लेना चाहिए, क्योंकि ये वहाँ खड़े होते हैं और इसकी इजाजत देते हैं और बेहयाई के खिलाफ बोलने से डरते हैं, क्योंकि इनकी तंजीम इन्हें बाहर निकाल फेंकेगी। आप खुदा के कलाम को अपनी जमात के लिए मसलूब कर रहे हैं। कलाम कहता है एक औरत के लिए एक मर्द का लिबास पहनना मकरूह है। I condemn the thing. I accuse it of crucifying the word of God before the people. Bobbed-haired women, short wearing in the crown, stand up in the choir. मैं ऐसी बात को मुजरिम ठहराता हूँ। मैं इल्जाम लगाता हूँ कि ऐसा करना गोया खुदा के कलाम को लोगों के सामने मसलूब करना है। कटे हुए बाल, छोटे कपड़े और ताज पहनी हुई औरतें क्वायर में खड़ी होती हैं। Somebody said to me the other day, some woman asked me, said, well, where do you think you'd find? I said, if the Lord asked me to pick a dozen out over the world, I'd be scared to death. किसी दिन किसी ने मुझसे पूछा, बल्कि किसी औरत ने मुझसे पूछा, भाई बताएं कहाँ आप ऐसी औरतें पाएंगे? मैंने कहा, अगर खुदावंद मुझसे कहे कि 1 दर्जन ऐसी औरतें दुनिया में से तलाश करो, तो मैं तो डर कर फोती हो जाऊंगा। By the discernment of the Spirit, stand there and watch them and stand like that and see them things over, the dirty, filthy, low-down cigarette suckers out there carrying on like that and stand in a robe choir and sing in that condition and let the audience see and they'll say, well, if she can do it, I can too. A Christian life is a life of holiness and purity and praise the Lord. Hallelujah. जब मैं इन्हें वहां खड़ी देखता हूँ तो रूह के वसीले दिल के भेद जाहिर हो जाते हैं। वो खड़ी रहती हैं और उन पर इन चीजों को देख लेता हूँ। गंदे, गलीज, हकीर और सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं और बाहर जाकर ऐसे ही काम करते रहते हैं, और वो चोगे पहने इसी गंदी हालत में क्वायर में गीत गा रहे होते हैं और सामीन इन्हें ऐसे देख रहे होते हैं और वो कहेंगे, अच्छा अगर ये लड़की लबादा ओढ़े ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। एक मसीही जिंदगी पाकीज़गी, मासूमियत और खलूत से बरी होती है। In the name of Jesus Christ, for their filth and dirt, they have brought the gospel to a disgrace, and those who try to hold it are called fanatics. Calling that's old-fashioned nonsense. I indict them in the name of Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के नाम से इनकी गंदगी और नापाकी पर फर्द जुर्म लगाता हूँ। इन्होंने अंजील को बदनाम करके रख दिया है
और वो जो इसको ऊंचा रखना चाहते हैं उनको पागल कहते हैं, इन्हें पुरानी तर्ज का कहते हैं और ये हमाकत है। मैं यीशु मसीह के नाम में इन पर फर्द जुर्म लगाता हूँ। Just modern striptease is on the street. Singing choirs. Cigarette smoking, tell dirty jokes, 3 or 4 husbands and the 6th one. And then singing the choir because they got a voice. बस जिद्दत के नाम पर यह नंगापन सड़कों पर आ गया है और क्वायर में ये शामिल है। सिगरेट पीती हैं, गंदे मजाक करती हैं, छठे शोर के बाद भी 3-4 और कर लेती हैं और फिर भी क्वायर में गीत गाती हैं क्योंकि इनकी आवाज सुरीली है। You poor intellectual, spiritual deprived, rejected upon your own grounds. You read the same Bible any other man can read, but you've turned down the Spirit of God. The Bible said you'd be given over to a strong delusion to believe a lie and be damned by it. तुम कम अकल और रूहानियत से महरूम हो। तुम अपनी ही बातों से रद्द कर दिए गए हो। तुम भी वही बाइबल पढ़ते हो जो कोई दूसरा पढ़ सकता है, मगर तुमने खुदा की रूह को ठुकरा दिया है, जबकि बाइबल फरमाती है तुम बहुत बड़ी गुमराही में हो ताकि झूठ पर ईमान लाकर मुजरिम ठहराए जाओ। You actually believe that you're right, and the Bible says that you'd believe it and be damned by the same lie that you believe to be the truth. तुम दरअसल ये ईमान रखते हो कि तुम दुरुस्त हो और बाइबल फरमाती है कि तुम झूठ पर ईमान लाओगे और मुजरिम ठहराए जाओगे उसी झूठ पर ईमान लाने की वजह से जिसको तुम सच समझते हो। Therefore I indict you by the word of God. You're teaching the people an error in crucifying the principles of Christ, of holiness and life. Above, a person might walk out on the street and be a different person. इसलिए मैं खुदा के कलाम के वसीला से तुम पर फर्द जुर्म लगाता हूँ। आप लोगों को गलत बात सिखा रहे हैं और मसीह की पाकीज़गी के असूलों और आसमानी जिंदगी को मसलूब कर रहे हैं, जबकि एक शख्स बाहर सड़क पर जाकर चल सकता है और एक मुख्तलिफ शख्स बन सकता है। Preachers standing on ball ground smoking cigarettes. Stumbling blocks. All the other tommy rot that they put up with. Women in their choir wearing shorts, bobbed hair, carrying on like that, painted faces. मुनाद मैदानों में खड़े हुए सिगरेट पी रहे हैं जिससे ठोकर लगती है और बाकी सारी गंदी चीजें दिखाई देती हैं जिनसे वो लिपटे हुए हैं। औरतें बाल कटवाए, छोटे कपड़े पहने और रंगे चेहरों और उल्टी सीधी बातों के साथ क्वायर में गीत गा रही हैं। And then call it sister this and that. And the Bible condemns that stuff. Right. Go to parties and carry on. Still a member of the church. Maintain your testimony and live any way you want to. और इन चीजों के बारे में कहती हैं, बहन ऐसा है और वैसा है, मगर बाइबल ऐसी चीजों को रद्द करती है। ये सच है। नाच रंग में जाएं तो भी आप चर्च के मेंबर हैं। अपनी गवाही जारी रखें और जैसे चाहें जिंदगी बसर करते रहें। Don't think I'm talking altogether about Presbyterians. I'm talking about you Pentecostals. Right. You once knew the truth, but you thought you couldn't take it. ये मत सोचे कि मैं ये सारी बातें प्रेस्बिटेरियन के लिए कह रहा हूँ। मैं आप पेंतीकोस्टल लोगों के बारे में कह रहा हूँ। ये सच है। आपको एक मर्तबा सच्चाई दी गई थी, मगर आपने सोचा आप इसके साथ नहीं चल सकते। You couldn't support your pastor. Your pastor couldn't have that big job with so many $100 a week in a big fine church to preach in and ride and carry on the way they do. आप अपने पास्टर की मदद नहीं कर सकते थे और ना ही ये हफ्ते में $100 कमाने वाली उसके पास नौकरी होती और ना ही ये बड़ा खूबसूरत उसके पास ये चर्च होता मुनादी के लिए, अगर उसने आपको ऐसे ही चलने ना दिया होता। If he condemned that, the organization would throw him out, so he has to keep it. He has to say it. Therefore, he sold his birthrights for a mess of pottage of the world, of Esau's slop. And what's he going to get for it? Both fall into the ditch of condemnation and be indict them as prostitutes of the gospel. अगर वो ये सब कुछ गलत करार देता तो आपकी तंजीम ने उसे बाहर उठाकर फेंक देना था। इसलिए उसने ये सब कुछ जारी रखा और उसे हाँ कहना पड़ा, इसलिए कि उसने ईसाऊ की तरह अपने पलोटे का हक इस दुनिया की गंदगी के लिए बेच दिया है और इसे उसके बदले में क्या मिलने जा रहा है। दोनों ही गुनाह के गड़े में गिरकर कसूरवार ठहराए जा चुके हैं। मैं इनको अंजील को फरोख्त करने का मुजरम ठहराता हूँ। I was at a choir
one of the famous big places not long ago, one of the highest ranks of Pentecost that there is. And I happened to be sitting in this brother's study when the 4 or 5 choirs got together. ज्यादा अरसा नहीं हुआ, मैं एक बड़ी ही मशहूर जगह पर था। वहाँ एक क्वायर थी और ये वहाँ के आला दर्जे के पेंतिकोस्टल लोग थे। और यूं हुआ, मैं भाई के साथ मुतालिया के लिए बैठ गया, जबकि 4 और 5 क्वायरें वहाँ इकट्ठी हो गईं। Some of the finest organizations of the Pentecostals. And they didn't know I was in this minister study at Oklahoma. I was sitting down there below where this minister studies before he comes to his platform. और ये वहाँ पर, बल्कि ये आला पेंतिकोस्टल तंजीमों की क्वायरें थी और उन्हें नहीं पता था कि वहाँ ओक्लाहोमा में खादमों के मुताला में मैं बैठा हुआ था। मैं वहाँ नीचे बैठा हुआ था जहाँ खादम मुनादी करने से पहले मुतालिया करते थे। And what I did there was them little Rickies out there and Rickettas. Paint. Not a one of them had long hair. Every one of them with bobbed hair. Every one of them with makeup on. Every one of them with robes on. और जब मैंने देखा, वहाँ उनमें कुछ रिकी मौजूद थे और रिकियों जैसे रंगो रोगन लगाए हुए थे। उनमें से एक भी लड़की के बाल लंबे नहीं थे, बल्कि हर एक के बाल कटे हुए थे। उनमें से हर एक ने मेकअप किया हुआ था और हर एक चोगा पहने हुए थी। And little Ricky standing around there, going along like that. And another man was taking up a missionary offering. He acted like he's a blind man with a cup and going around saying all kind of blasphemy things about taking up the offering and things like that. और एक रिकी की तरह ये सब सजे संवरे थे और एक आदमी वहाँ चंदा ले रहा था। वो इस तरह का अमल कर रहा था गोया कोई अंधा कशकोल लिए हुए हो और इधर उधर घूम रहा था और हर किस्म की कुफरिया बातें चंदा लेते हुए कह रहा था। Got out there and tried to sing the Messiah. Oh my! It could do a pretty good job at it, but it didn't have the ring. No, it was dead. See? Oh my! There you are. That's his new Golgotha. और वहाँ पर उसने मेरे मसीहा वाला गीत गाना शुरू किया। हो मेरे खुदाया, काफी अच्छे तरीके से गीत गाया जा रहा था, मगर गीत में जान नहीं थी, नहीं बल्कि मुर्दापन था। समझे? हो मेरे खुदाया, यही उसका नया गुलगत्ता है। यहाँ पर है आप। Why do you think it's some little girl or some little woman in there? Well, if she'd come in there dressed like she should have been with long hair and paint off and things like that, they'd have made fun of her. आप क्या सोचते हैं, अगर ये लड़कियां या ये औरतें ठीक होकर वहाँ जाएं तो क्या हो अगर ये वैसे ही कपड़े पहने जैसे इन्हें पहनने चाहिए, लंबे बाल हों और चेहरे रंगे हुए ना हों और ना ही इस तरह की बाकी बातें हों, तो वो लोग इनका मजाक उड़ाएंगे। If she'd have stood up and when he's making that to do there, that bunch of young people, about 30 or 40 of them, the selected part of Pentecost, and doing things like that, if that little lady would have said something about it, they'd have put her out of the choir. अगर कोई लड़की वहाँ खड़ी हो और जब वो इस तरह का बना रहे थे, तो वहाँ क्या करना है? तो वो 30 या 40 नौजवान लोगों का झुंड था जो कि पेंतिकोस्टलों का चुना हुआ था, फिर भी इस तरह के काम कर रहे थे। अगर वो लड़की वहाँ उन्हें कुछ कहेगी तो वो उसे अपनी क्वायर से बाहर निकाल देंगे। Let the gospel preacher stand in the pulpit and say something about it, put him out of the organization. You crucify the Son of God afresh and put him to an open shame. His gospel that you claim to preach, you crucify him. जरा अंजील के मुनाद को पुलपट से ऐसी बातें कहने दें, वो उठकर अपनी तंजीम से बाहर फेंक देंगे। आप खुदा के बेटे को दोबारा मसलूब करके सबके सामने उसे शर्मिंदा करते हैं। उसकी अंजील की मुनादी का आप दावा करते हैं, आपने तो उसे सलीब पर चढ़ा दिया है। I indict this Christ-rejecting generation by the Word of God. And by its power of this last days of vindication that He is still alive. Yes, they are against the clean-cut, vindicated Word of God. Their organizations can't stand up to it. मैं मसीह को रद्द करने वाली इस नस्ल के खिलाफ खुदा के कलाम से फर्द जुर्म लगाता हूँ और इस कुदरत के वसीला जो इन आखिरी दिनों में साबित कर रही है कि वो आज भी जिंदा है। जी हाँ, ये खुदा के साफ साफ साबित शुदा कलाम के खिलाफ है। इनकी तंजीमें कलाम के साथ खड़ी नहीं हो सकती। Big churches and denominations is this new Calvary. I say it again. This their modern strip teases are their choirs. The high priest of each denomination cries out like the high priest of that day, now come down and show us a miracle. मैं इस बात को दोबारा कहता हूँ, बड़े बड़े चर्चिस और तंजीमें उसके लिए नई सलीब है और ये जो उनकी क्वायरें हैं उनका ये जदीद नंगापन है। ये एक तंजीम का सरदार काहिन उस वक्त के सरदार काहिन की तरह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, अब तू नीचे उतरा और हमें कोई मौजज़ा दिखा। That
was the first crucifixion. It's the same today. I've had them say, well, now you raise the dead, do you? Won't you go up there? You got a wife in the graveyard. You got a baby up there. ऐसा पहली मसलूबियत पर हुआ था और आज भी ऐसा ही हो रहा है। मैंने उन्हें ये कहते सुना है, भाई अब तुम मुर्दे जिंदा करते हो, क्या तुम करते हो? तुम फिर कब्रिस्तान क्यों नहीं जाते? वहाँ तुम्हारी बीवी है, वहाँ तुम्हारी बच्ची है। They said to him, we heard you raise the dead. We got a graveyard full of them up here. Come raise it. Oh, ignorance will breed ignorance. उन्होंने यीशु को भी यही कहा था, भाई हमने सुना है तू मुर्दों को जिंदा करता है, हमारे पास एक मुर्दों से भरा हुआ कब्रिस्तान है, आ और उन्हें जिंदा कर। हो, जहालत, जहालत ही जहालत को जन्म देती है, समझे? Big churches, big choirs, high priests of this day, come down. Show us a miracle. Our denomination can't do. आज के ये बड़े बड़े चर्चिज, बड़ी बड़ी कोयरें और सरदार काहिन कहते हैं, आ और हमें कोई मौजज़ा दिखा जो हमारी तंजीम ना कर सकती हो। I had a man not long ago made a remark on after a little broadcast I had in Jonesboro, Arkansas, telling about some woman being healed. This fellow belonged to a certain denomination of church, and he got up behind there and said, I challenge any man to bring me and show me a miracle. ज्यादा अरसा नहीं हुआ जब जोन्सबोरो अरकनसास में मैंने एक छोटा सा पैगाम दिया था, तो एक आदमी से मुलाकात हुई जिसने ये राय दी और किसी औरत के बारे में बता रहा था जिसने शिफा पाई थी। वो साथी किसी तंजीमी चर्च का रुकन था और वो वहाँ पीछे आकर खड़ा हो गया और कहा, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई शख्स एक भी मौजज़ा करके दिखाए। I went and got a doctor. A man had been cured with cancer. I went and got a woman who had been in a wheelchair for about 20 years. She was healed of arthritis, been in a wheelchair. I took it over and said, now I want the money, $1,000. मैं गया और डॉक्टर को बुला लाया क्योंकि एक शख्स को कैंसर से शिफा मिली थी और मैंने उस औरत को भी बुला लिया जो 20 साल से व्हील चेयर पर जोड़ों के दर्द के बाद बैठी हुई थी, मगर अब ठीक हो गई थी। मैंने ये दिखाया और कहा, अब इसके बदले में तुझसे $1,000 मांगता हूँ। He said, well, it isn't here. It's over in Waco, Texas, where our headquarters is. I said, all right, we'll just go over there and get it. I said, you make arrangements and we'll go tomorrow. See? उसने कहा, भाई हो ये यह नहीं है, ये तो हमारे हेडक्वार्टर वोको टेक्सास से मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, हम वहां जाकर लेंगे। मैंने कहा तुम इंतजार कर लो और हम कल चलेंगे, समझे? I said, here's a doctor to say that these people absolutely had cancer. Here it is on the list, X-ray. Here's this woman, the whole neighborhood knows she's sat in that wheelchair for 20 years and she's walking right now. And the doctors have been doctor after doctor after doctor after doctor and everything. And here she is alive today. मैंने कहा हम मेल करेंगे। मैंने कहा यहाँ डॉक्टर मौजूद है जो तस्दीक कर रहा है कि इन लोगों को कैंसर से शिफा मिली है। ये उसके एक्सरे हैं जिनमें बीमारी साफ दिखाई दे रही है। और यहाँ एक औरत है जिसे उसके सब पड़ोसी जानते हैं कि वो 20 सालों से व्हील चेयर पर थी और अब ठीक ठाक चल फिर रही है। और डॉक्टरों की लंबी कतार है, एक डॉक्टर के बाद फिर डॉक्टर, एक डॉक्टर के बाद फिर डॉक्टर, फिर डॉक्टर, फिर डॉक्टर, और सब कुछ तस्दीक किया जा चुका है, मगर वो औरत यहाँ आज तक जिंदा है। Now you said you give $1,000. I want to put it in a missionary fund. I want it. He said, well, it's over at Waco, Texas. I said, we'll go tomorrow. He said, wait a minute. Let me tell you something. I'll take a little girl with me. And let me take a razor and cut her arm and then you heal it before our brethren and they'll give you the money. अब तुमने कहा था तुम $1,000 दोगे, मुझे वो रकम चाहिए, मैं उसे चंदे में डालना चाहता हूँ और मुझे वो रकम चाहिए, समझे? उसने कहा भाई पैसे तो वाको टेक्सास से मिलेंगे। मैंने कहा हम कल चलेंगे। उसने कहा 1 मिनट रुकिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने कहा एक छोटी लड़की को लूंगा और एक ब्लेड से उसका हाथ काटूंगा और फिर आप उसे हमारे भाइयों के सामने ठीक करना और वो पैसे आपको मिल जाएंगे। I said, you devil. If thou be the Son of God, come off of this cross. Tell us who hit you with a rag around his head. Hit him on and said, now if you're a prophet, tell us who. If thou be the Son of God, come down off the cross. मैंने कहा तुम अबलीस हो। वही बात, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब से उतर आ। उन्होंने उसकी आंखों पर कपड़ा लपेट दिया और कहा, हमें बता तुझे किसने थप्पड़ मारा? और थप्पड़ मारा गया। कहा अब अगर तू नबी है तो नबूवत कर और बता किसने मारा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब से उतरा। Blind leaders of the blind, they need mental healing. A man to do a thing like that or make a remark like that, certainly. अंधों के अंधे रहनुमा, इनको ज़हनी शिफा की जरूरत है। एक आदमी जो ऐसी बातें करे और ऐसी राय दे, उसे वाकई इलाज की जरूरत है, यकीनन।